are going to discuss about in the sequence of William Shakespeare's poem. Today we are going to discuss about the introduction of or the line by line summary and the visual explanation of the poem. Sonnet number 18. Shall I compare to a summer's day? In this poem, sonnet number 18, beginning with the famous line, "Shall I compare thee to the summer's day?" One of the most celebrated poem of the Shakespeare, which was published in 1609. This poem is one of the most important poem of Shakespeare's sonnet sequence. This poem was published in 1609. This poem is a part of Shakespeare's sonnet sequence of 154 sonnets. Total sonnet of 154 is, this poem is one of them. Now we will discuss about the poem. We will meet in the end and discuss some important things. Okay, just do that. Okay. In this poem, the Shakespeare expressed the deep admiration of the beauty of his beloved. He compares his beloved to a summer's day, but soon he concludes, starting of the poem, beloved for more beautiful and constant. His beloved is more constant rather than summers, which is temporary and imperfect. But Shakespeare argues that the natural beauty fades with time. The beloved beauty will remain eternal through the power of poetry. His bodily beauty will declines and fade according to her age, but her beauty of verse, Shakespeare's beauty of verse, of always live in the verse of poetry. Okay, this poem is highlight about the love, beauty, immortality, time, and enduring the power of art. In this poem, sonnet 18, Shakespeare introduces how Shakespeare immortalized his beloved beauty and his beloved beauty through the everlasting power of poetry. In the poem, couplet of the poem, in this poem, "Shall I compare to the summer's day?" In the couplet of the poem, Shakespeare says that you always remain alive through the poetry and its lines. Okay, this is complete introduction. Now we will begin with the poem. How poem goes: "Shall I compare thee to the summer's day?" Shall I compare thee to the summer's day? थीम के बारे में बात करेंगे, एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात करेंगे. पोएम पब्लिश हुई 1609 में. ओके, नाउ विल बिगिन विद द पोएम. ग्रेटेस्ट पोएम है, एड्रेस्ड किया जाता है फेयर यंग और यूथ, जो एज है शेक्सपियर की, उसके बारे में. क्या कहता है वो? देखो, शेक्सपियर लाइन बाय लाइन के एक्सप्लेनेशन करते हैं. "Shall I compare thee to summer's day? Thou art lovely and more temperate. Rough winds to shake the darling buds of May, and summer leaves hath all too short a date. Then next line, sometimes too hot, and sometimes gold compromise, just a minute. Gold complains and dimmed. Every fair from the sometimes declines, by chance or nature changing of course. But the eternal summer's cold not fade, nor lose possession of their fair. Thou oust, when in eternal lines is time thou growest. So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and his life to thee. Now we will
सी द लाइन बाय लाइन डिस्कशन. ओके, बिगेन विथ line by line poem. Okay, just a minute. Okay, let's start. Shall I compare thee? Shall I compare thee to a summer's day? Shall यानी क्या, मैं. Shall यानी क्या, I यानी मैं, compare thee क्या मैं तुम्हारी तुलना करूं, thee यानी you. ओके, thee यानी you, दी मीन्स यू. यू टू ए समर डे, क्या कभी सोचता है कि द राइटर कंसिडर्स दैट, क्या मैं शैल आई कंपेयर, क्या तुम्हारी तुलना गर्मी के दिनों के साथ, गर्मी के सुंदर दिनों के साथ की जा सकती है. दाउ आर्ट मोर लवली. दाउ आर्ट मतलब दाव यानी तुम, मतलब यू. लवली मतलब सुंदर हो. एंड मोर टेम्परेट, तुम ज़्यादा. मोर टेम्परेट मतलब संतुलित या मध्यम, जो मिडिल एरिया होता है या बीच का होता है, ना ज़्यादा ब्यूटीफुलनेस और ना ही ज़्यादा फेड. ओके, तो इस लाइन का पूरा, दाउ आर्ट लवली मोर टेम्परेट, तुम गर्मी के दिनों से अधिक सुंदर हो, अधिक संतुलित लगती हो. दोनों लाइनों को क्या हो गया, क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के दिनों से करूं या समर के दिनों से करूं. तुम गर्मी के दिनों, तुम गर्मी के दिन से अधिक सुंदर और संतुलित लगती हो. क्यों, क्योंकि सेम टाइम पे तुम्हारी जो ब्यूटीनेस है वो सेम रहती है, लेकिन सेम डे जो गर्मी का दिन है, मॉर्निंग में उसकी उतनी गर्मी नहीं होती और इवनिंग मिड डे में ज़्यादा और एंड में कम. इस प्रकार से उसकी तो फेड और कम ज़्यादा होती है, लेकिन तुम्हारी सेम टाइम पे उतनी ही रहती है जितनी तुम हो. ठीक है, तुम समर के दिन से भी क्या हो, अधिक सुंदर हो. कवि कहता है कि प्रिय समर से भी अधिक सुंदर है तुम. फिर कहता है राउच रफ विंड डू सेक डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मी. रफ विंड्स मतलब तेज हवाएं. डू सेक हिला देती है. डार्लिंग बर्ड्स वो जो कच्ची प्यारी कलियां हैं, मई के महीने में जो कच्ची कलियां हैं उनको क्या कर देती है, हिला देती है. क्या है इस लाइन का, गर्मी के मौसम में भी कई तरीके की खामियां, मतलब कई तरीके की कमियां हैं. तेज हवाएं, गर्मी के मौसम में जो तेज हवाएं, फिलहाल आप देख सकते हैं गर्मी के मौसम में जो तेज हवाएं चलती है, वो तेज हवाएं जो कच्ची बर्ड्स होती हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, और जो कच्ची कच्ची पत्तियां होती है, जो लीव्स होती है पेड़ों की, उनको क्या करती है, नुकसान पहुंचा देती है. एंड समर लीज हाथ टू शॉर्ट टू डेट. लीज मतलब अवधि, या समर तो बहुत छोटी होती है, शॉर्ट डेट कम समय के लिए होती है. समर लीज मतलब छोटी. लीज का मतलब किसी टेंड टाइप की जो चीज होती है, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए होती है. टू शॉर्ट ए डेट कुछ समय के लिए होती है, मतलब जो समर स्थायी नहीं है और यह जल्द ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है. समर लीज हाथ टू शॉर्ट ए डेट, वह बहुत छोटी होती है और जल्द ही समाप्त हो जाती है. तो अब इन दोनों का क्या हुआ, गर्मियों के मौसम में भी बहुत क्या होती है, खामियां होती है. क्या खामियां होती है, गर्मी के मौसम में जो तेज हवाएं चलती है और मई के महीने में जो नए नए बर्ड्स और कलियां खिलती है और जो नए नए पत्ते होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है. इस कारण समर का जो महीना है ना वो स्थायी नहीं है और जल्दी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है. तो पूरे की लाइन क्या हो, फुल स्टेंजा, क्या मेरी प्रेमिका मेरी बिलव्ड, क्या मैं तुम्हारी तुलना है जो समर के दिनों से करूं, क्योंकि तुम है ना जो गर्मी के दिनों में और भी ज़्यादा सुंदर लगती है. गर्मी के दिन या गर्मी का जो टाइम है ना, जो मई का महीना है, गर्मी उसमें और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, नुकसान पहुंचाती है. जो नए पत्ते उनको नुकसान पहुंचा देती है, और इसलिए जो गर्मी का मौसम है वो बहुत समय के लिए ज़्यादा टिकता नहीं है. समटाइम्स इट्स टू हॉट. समटाइम्स कभी कभी जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा गर्म, कभी कभी इट्स टू हॉट ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, चमकता है. हॉट आइज ऑफ हेवन साइंस. हॉट आइज जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, मतलब उसकी जो हेवन साइंस, यहाँ पर क्या किया जाता है, सन को क्या किया गया यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन. सन के आइज लगा के उसको साइन करवा रहे हैं, मतलब सन को पर्सोनिफाई किया है यहाँ पर. मतलब कभी कभी गर्मी क्या होती है, असहनीय होती है. एंड ओफन, एंड और ओफन प्राय है, ओफन प्राय है. इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन. गोल्ड कॉम्प्लेक्शन मतलब सुनहरा रंग. एंड डिम्ड मतलब धुंधला पड़ जाता है. कभी कभी जो सूर्य की जो तेज चमक है और जो सूर्य का जो तेज प्रकाश आता है वो भी कभी कभी क्या हो जाता है, गोल्ड कॉम्प्लेक्शन जो सुनहरी चमक है और जो सुनहरा रंग है
वो भी कभी कभी क्या कर जाता है, धुंधला पड़ जाता है। क्यों? कभी कभी बादलों से सूरज की चमक भी कम हो जाती है और वो भी धुंधला और उसकी चमक भी कम हो जाने लगती है। और उसी के साथ साथ तुम्हारी जैसे जैसे तुम्हारी उम्र ढलेगी वैसे वैसे उम्र के पीछे जो तुम्हारी जो चमक है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाई चांस एट every fair from sometimes declines and every fair sometimes declines by chance or nature changing course of untrimmed. It means what does he saying? He is saying कि एवरी फेयर मतलब जितनी भी ब्यूटीनेस से ब्यूटीफुल जो चीज़ होती है, समटाइम्स डिक्लाइंस, उसका भी कभी कभी क्या होना है, डिक्लाइन होना है, उसको भी क्या होना है, क्षीण होना है। बाई चांस और नेचर, कभी कभी वो चीज़ क्या होती है, प्रकृति की जो सौंदर्यमयी चीज़ बाई चांस और नेचर, या तो प्रकृति के जो दुर्घटनाग्रस्त या जो बाई चांस दुर्घटनाग्रस्त वो चीज़ें क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है और अनट्रिम्ड होने लगती है। मतलब जो पृथ्वी की जो नेचर की जो चीज़ें हैं या नेचर का जो तूफान है उसके कारण वो चीज़ें क्या होने लगती है, अपनी क्या सुंदरता खो देती है। बाय द इटरनल समर, बाय दाई बट लेकिन दाई तुम्हारी, इटरनल समर जो तुम्हारी जो शाश्वत जो सुंदरता है वो क्या होगी, इस गर्मी के दिनों में कभी भी नहीं मुरझाएगी और ना ही कभी फीकी पड़ेगी। बाय जो बट दाई लेकिन तुम्हारी जो इटरनल जो शाश्वत, समर शैल नॉट फेड, जो तुम्हारी जो सौंदर्यीकरण है, जो तुम्हारा ब्यूटिफिकेशन है वो कभी क्या नहीं होगा, मुरझाएगा नहीं। ओके, तुम्हारी जो सुंदरता है वो हमेशा जीवित रहेगी। जो समर है वो तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, टाइम के अनुसार क्या होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। एक दिन के अंदर कभी ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है, लेकिन तुम्हारी जो सुंदरता है वो हमेशा जीवित रहेगी। अब देखो आगे की लाइन में किस तरीके से जीवित रहेगी उस चीज़ के बारे में बताता है। नोर लूज पैसन देयर दाउ रोस्ट, नोर नाही, लूज पैसन मतलब खो सकती है, फेयर मतलब सुंदरता, आउट रखना, तुम हमेशा सुंदरता रहो, तुम्हारी सुंदरता हमेशा बनी रहेगी। चाहे जो तुम्हारी बॉडीली ब्यूटिफिकेशन है वो खत्म हो जाए, लेकिन जो तुम्हारी सुंदरता है वो हमेशा बनी रहेगी। नोर शैल डेथ बर्ग, ना तो जो डेथ है ना, डेथ बर्ग मतलब सुंदरता, जो मृत्यु भी इस चीज़ का घमंड नहीं कर सकती कि क्या घमंड नहीं, शेड मतलब वो उसकी छाया में तुम्हें ले जाए। मृत्यु भी इस चीज़ का दावा नहीं कर सकती कि वो तुम्हें अपनी छाया में ले जाए। इस चीज़ का मृत्यु भी दावा नहीं कर सकती, इस चीज़ का मृत्यु भी ये नहीं कह सकती कि उसने तुम्हारी सौंदर्यता को खत्म कर दिया। ठीक है, कविता के जो कवि है, जो उसकी प्रियतमा है, उसको क्या करता है, वो सौंदर्यीकरण रहने के बारे में बात करता है और सदा अमर बना देगी। वहन इटरनल लाइन्स डाउ ग्रो वेस्ट, और जैसे जैसे ये पोएम समय जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा और जो ये पोएम है वो क्या रहेगी, हमेशा जीवित रहेगी। इस पोएम के थ्रू तुम क्या रहोगी, हमेशा जीवित रहोगी, और ये पोएम तुम्हें हमेशा क्या बना देगी, लंबा और जिंदा रखेगी। कपलेट देखो, सो लॉन्ग एज मैन क्रीम ब्रीथ, जितने समय तक लोग क्या रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, और आइज कैन सी, और जब तक लोगों की आंखें क्या रहेगी, देखती रहेगी। क्या, जब तक मानव प्रजाति मौजूद रहेगी या मानव जाति मौजूद रहेगी, या लोग जब तक देखते रहेंगे और सांस लेते रहेंगे। सो लॉन्ग लिव दिस गिव लाइफ टू दी, जब तक लोग सांसें लेते रहेंगे और जब तक लोगों की आंखें देखती रहेगी, मतलब जब तक मानव प्रजाति जिंदा रहेगी, तुम हमेशा क्या रहोगी, जिंदा रहोगी। ठीक है, तुम हमेशा क्या रहोगी, जिंदा रहोगी। इन पोएम्स के वर्ड्स के थ्रू दुनिया मर सकती है लेकिन तुम नहीं मर सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें किसमें जिंदा किया है, इस कविता के जो वर्ष है, छंद है, उनके अंदर मैंने तुमको क्या किया है, जिंदा किया है। अब कवि राइटर क्या कंक्लूड करता है इस सोनेट में, कवि कहता है कि शेक्सपियर compares beloved to the summer's day and concludes that the beloved is more beautiful, her beloved is more beautiful and everlasting through the power of poetry। उसकी जो beloved है वो हमेशा क्या रहेगी, जीवित रहेगी। जो उसकी कवि ये जो पोएम है, उस पोएम के छंदों के हिसाब से द beloved beauty becomes immortal and survive, मतलब जो उसकी जो beloved है उसकी ब्यूटी हमेशा इमोर्टल रहेगी एंड, और जो समय के अनुसार हमेशा ज़्यादा सर्वाइव करती रहेगी और ना ही कभी मरेगी। ओके,
इट्स डन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसमें क्या गया, कंपेराइज किया बिलाउड को समर के साथ में, पहली लाइन में समर के साथ में कंपेयर किया गया, वो शो कर दिया गया, उसकी जो समर की जो इम्परफेक्टनेस है उसको शो किया गया है। दूसरी लाइन में समर को फेड के बारे में बताया गया, और ब्यूटी और फ्लीट जो अनस्टेडी है मतलब अनस्टेबिलिटी है उसके बारे में बताया गया। और 9 से 12 तक जो बिलवड की जो ब्यूटी है और जो किस तरीके से वो अपनी जो बिलवड है उसको वर्ष में क्या करेगा, जीवित रखेगा, उसके बारे में बात करता है। और जो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी ब्यूटिफिकेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस पोएम की थीम क्या है, लव है, इमोर्टिलिटी है, ब्यूटी है, टाइम है। लव कैसे है, वो उसकी जो प्रेमिका है उससे प्यार करता है और इमोर्टिलिटी के बारे में बात करता है। ब्यूटी मतलब ब्यूटी का तो किस तरीके से है, उसको कंपेयर किया गया सूर्य की चमक के साथ और महिला की चमक के साथ, और टाइम के अनुसार किस तरीके से ब्यूटीनेस घटती जाती है और बढ़ती जाती है। नेचर को मेटाफर के रूप में जो समर को एक वुमेन के साथ में, बिलवड के साथ में कंपेयर करके उसको मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। इमेजिनरी इटरनल लाइन्स, हेवन ऑफ आइज, आपने देखा होगा स्वर्ग के कभी आंखें नहीं होती, तो इमेजिनरी की है समर के डेज की। लेजेसी, पोइट्री एज एटर्निटी, कल्चरल आइकन के बारे में बात की है। फेमस सोनेट है। स्ट्रक्चर है 3 क्वार्टेन्स है प्लस 1 कपलेट है, मतलब 4 लाइन के 3 तो क्वार्टेन्स हैं और 2 कपलेट है, मतलब 12 और 2 14 लाइन हो गई। आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। और इसकी जो राइम स्कीम हम आगे देखेंगे। डिवाइसेज हाइपरबोल, मतलब चीज़ों को एग्जेजरेशन करके दिखाया गया है। पर्सोनिफाई किया गया है, किसको पर्सोनिफाई किया गया है, सन को आइज करके पर्सोनिफाई कर दिया गया है, ठीक है। बर्ड्स को पर्सोनिफाई किया गया है, और मेटाफर सन को आइज के रूप में मेटाफर की पर्सोनिफाई किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज से इन दिस लव एंड ट्रांसेंडेंट टाइम, शेक्सपियर क्लेम्स दैट ट्रू लव इमोर्टलाइज, जो सच्चा प्यार है हमेशा क्या रहता है, इमोर्टलाइज रहता है, इन वर्स छंद में जिंदा रहेगी। आउटलेट्स द फ्लीटिंग इम्परफेक्शंस, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, किसी न किसी में इम्परफेक्टनेस होती है। ऑफ नेचर एज फिजिकल वर्ल्ड, और ये दुनिया फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं इम्परफेक्टनेस रहती है। समर ऑल इंडस्ट्रियल, ब्यूटी इज टेम्परेरी, वेयर इज द बिलोव्ड ब्यूटी प्रिजर्व्ड फॉर एवर थ्रू, उसकी जो ब्यूटीनेस है उसको उसने प्रिजर्व करके रख दिया किसके अंदर, पोएम के अंदर। पोइट्री एज इमोर्टलिटी, द कपलेट रिवेल्स ट्रू सब्जेक्ट, जो कपलेट है पोएम का लास्ट 2 लाइन्स ट्रू सब्जेक्ट के बारे में, पोएम इट सेल्फ कविता के बारे में बात करता है। राइटिंग बिकम्स व्हीकल थ्रू द ब्यूटी अचीव्स इटर्नल लाइफ, ब्यूटी हमेशा क्या होती है, जीवन के बारे में बात करती रहती है। अब देखो लाइन राइम स्कीम, शैल आई कंपेयर द समर्स डे, डे एंड मे बोथ आर सेम, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन सेम, तो इट मीन्स ए एंड ए, ठीक है। देन थर्ड एंड फोर्थ लाइन विल बी सेम, टेम्परेट, डेट, बी ए बी हो गई, एंड थर्ड लाइन एंड फिफ्थ लाइन विल बी सेम, सी, ठीक है, सी एंड डीम्ड अनट्रीम्ड, सेम वॉइस निकल रही है तो ये दोनों की सेम होगी। ए बी बी सी, ए बी सी डी, देन फेड सेड, तो इन दोनों की ई हो गई। आउस्ट ग्राउस्ट, तो इन दोनों की एफ हो गई। देन एंड लास्ट में जी सी दी, तो इसकी क्या हो गई, जी। तो राइम स्कीम क्या हो गई इसकी, ए बी सी डी, ई एफ और जी, ठीक है। शेक्सपियरियन सोनेट में लिखी गई है। शेक्सपियरियन सोनेट में इसको क्या किया गया, लिखा गया है, जो कि एक इंग्लिश सोनेट का पार्ट है। शेक्सपियरियन इंग्लिश सोनेट 2 ऑक्टेव और सस्टेज, इसमें शेक्सपियरियन और इटालियन सोनेट आते हैं। शेक्सपियर में 14 लाइन है, 3 क्वार्टेन्स है, 1 कपलेट है, बता दिया मैंने। आइम्बिक पेंटामीटर 10 लेवल्स है पर लाइन में, लाइक दिस। शैल आई कंपेयर, मतलब 5 दी 2 6, सम और 8 और 2 10, मतलब 10 कपलेट्स हैं, मतलब 10 सिलेबल्स है पर लाइन में। राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ वोल्टा 9 लाइन, इटर्नल रेजोल्यूशन के बारे में बात करती है, ठीक है। नेक्स्ट, इमेजिनरी वर्सेज रियलिटी, किस तरीके से समर की इमेजिनरी और इटर्नल रियलिटी, उसमें समर्स डे परफेक्ट और फ्लीटिंग, जो आइडियलाइज किया चीज़ों को किस तरीके से बेंचमार्क सेट किया उस चीज़ों को लेकर। डेफिशिएंट कंट्रास्ट के बारे में बात कर सकता है। समर्स डे को किसकी चीज़ में, समर्स डे बिलव ट्रांसेंडेंट सीजनल डीके,
सीजनल के हिसाब से उसकी जो ब्यूटीनेस है वो भी क्या होती जाती है, डीके होती जाती है। डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे ब्यूटी के बारे में बात करती है, और जो फर्टिलिटी, नेचर की जो फर्टिलिटी है उसके बारे में बात करता है। द पोएम एज इमोर्टलाइज वेसल व्हाट नेचर डेस्ट्रॉय, और नेचर किस तरीके से टाइम के अनुसार नेचर क्या हो जाता है, डेस्ट्रॉय कर देता है चीज़ों को, ठीक है। आर्ट ऑफ आइज ऑफ हेवन, सन को पर्सोनिफाई किया गया। पावरफुल इनकंसिस्टेंट चीज़ों के बारे में, इनकंसिस्टेंटी के बारे में बात की, क्योंकि सन सुबह धीरे धीरे पीक में, मिड में पहुंचता है, आफ्टरनून में पिक में पहुंचता है, एंड देन गो ऑन डाउन। डेथ को पर्सोनिफाई किया, डिफिटेड किया गया है। समर को लीज बताया गया है, और जो कपलेट है ब्यूटी को एंडोर करता है। मेटाफर का यूज किया गया, पर्सोनिफाई किया गया चीज़ों को। एज लॉन्ग एज, बिलव्ड, एस्थेटिसिटी, एक्सटेंड मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। आइज को पर्सोनिफाई किया गया है। हाइपरबोल, एग्जेजरेशन किया गया है, एम्फेसाइज की ट्रिनिटी वर्ड्स पर। पोएम की जो लास्ट लॉन्ग जो ह्यूमैनिटी है उस चीज़ पर, एज लॉन्ग एज आई और आइज कैन सी, हाइपरबोल दिया। एलिट्रेशन, समर शॉर्ट, डार्लिंग बर्ड, डार्लिंग मतलब जो समर है और जो पत्तियां हैं उनको ह्यूमन के साथ में डार्लिंग मतलब बिलव्ड के रूप में अप्रिशिएट किया है उसने। एंगेजमेंट मतलब मिमिस लाइन्स रन अक्रॉस द बाउंड्रीज, मतलब जो तो तीसरे नंबर का क्वार्टेंस है उसके अंदर विदाउट पोज के लाइन क्या हो रही है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या हो रही है, सरफेस कर रही है। बट बाय द समर फेड, ओके। लिटरेरी इन्फ्लुएंस, कल्चरल अनेबिलिटी, फिलोसॉफिकल डेप्थ के बारे में बात किया जाए, किस तरीके से एंड्योर करता है क्वेश्चंस को, उसके बारे में बात किया जाता है। देन द एंड ऑफ द पोएम, कंक्लूजन इन द पोएम, what we can see in a conclusion, so man can breathe and eyes can see, can breathe and eyes can see, breathe and eyes can see to me, breathe and eyes can see to me as long as lives, as this gives life to thee, okay। इसको इसने यहाँ पे क्या किया गया है, जो कंक्लूजन है, और वो कहता है कि जो लव इज अ मोस्ट पावरफुल थिंग that human being have ever think about, okay। most powerful, capable और transcending nature के बारे में बात की है इसमें। poetry as a medium through the beauty and achieves immortality, poetry के थ्रू beauty और immortality को क्या कर सकते हैं हम, अचीव कर सकते हैं। समर की impermanence और कंट्रास्ट किया गया शार्पली तरीके से, वर्ड्स को परमानेंस के रूप में डिवाइड किया गया है। जो सोनेट है, जो लंबे टाइम तक उसकी जो बिलव्ड है उसको क्या करके रख सकता है, सोनेट। जो सोनेट है और जो पोएम की जो लाइंस है, इन लाइंस के थ्रू जो कवि है जो अपनी जो बिलव्ड है उसको लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करवा सकता है। तो उसने इस तरीके से अपनी जो बिलव्ड है उसको कंपेयर किया है किसके साथ में, समर के साथ में। और वो कहता है कि माई डियर बिलव्ड, यू ऑलवेज बी लिव इन माई पोएम्स वर्ड्स एज अ लॉन्ग टाइम, समर लीव्स फॉर सम टाइम, बट यू विल नेवर fade and your beauty is never fade, beloved beauty through the everlasting power of poetry के रूप में उसने रिप्रेजेंट किया है। और जो लव, ब्यूटी, इमोर्टलिटी, टाइम और जो पावर ऑफ आर्ट है उसके बारे में बात की है। और जो अपनी बिलव्ड है उसका जो डीप एडमायरेशन, हाउ ही पोइट एक्सप्रेस द डीप एडमायरेशन, deep admiration of his beloved and beautiful consistent through the summer, ओके। अपनी प्रेमिका को समर के साथ कंपेयर करते हुए उसने कहा है कि तुम हमेशा जिंदा रहोगी, ऐसे नहीं तो मेरे वर्ष में हमेशा जिंदा रहोगी। जब तक व्यक्ति जीवित रहेंगे और जब तक मानव प्रजाति जिंदा रहेगी धरातल पर, तब तक तुम रहोगी, ओके। इसी ही लाइन के साथ में एक व्यक्ति किस तरीके से अपनी बिलव्ड के लिए चीज़ों को कंपेयर कर सकता है, यू कैन इमेजिन दैट। और ये बात सही भी है कि उसने तो अपनी प्रेमिका को क्या कर दिया, एक तरीके से इमोर्टलाइज कर दिया थ्रू द वर्ड्स, ओके। हैव ए गुड, जय हिंद, वंदे मातरम। हम आपको पोएम को यहीं ख़त्म करते हैं। शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। अगर आपको पसंद आया है तो हम नेक्स्ट सीक्वेंस में शेक्सपियर की और इम्पोर्टेंट पोएम्स लाएंगे सब्सक्राइब करके। और आपको वीडियो में अगर कुछ भी डाउट हो और पोएम से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद,